मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने प्रदेश में विकास परक माहौल बनाकर निवेशकर्ताओं के बीच में भरोसा कायम करने का काम किया है। इसी कड़ी में 12 जून 2014 को नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। यूपी इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव के प्रारंभ में प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश व अनुकूल माहौल पर प्रकाश डाला। First of all, we came out with our infrastructure and industrial policy 2013. That is a very well-received policy. We are talking about giving, various facilities for those who want to set up industries in various regions of the state of Uttar Pradesh, like interest subsidy, like stamp duty exemption, and so on and so forth. But the major point of this policy is, ladies and gentlemen, that if you are making a major investment in the state of Uttar Pradesh, which is a mega project, an investment of more than 200 crores, and especially if the investment is greater than 500 crores, then our policy says that we will sit across the table with you. We will sit across the table, find out what you need. Whatever you need, you list out your needs. We'll sit across the table and settle it with you, and we will come out with a special concession package or a special facilitation package for you, so that will enable you to set up your industry in the state of UP. I think this is a major strength, a major way that shows how we are going forward to invite industry into our state. We hope that our proactive approach assures you, and the very presence of the Honorable Chief Minister with his senior team assures you, that how eagerly we want to accomplish meaning outcomes together. This event is a unique opportunity for us to put our heads together, discuss and debate ideas and issues, and take concrete steps to ensure the next growth wave in and of Uttar Pradesh. We are partnering with the private sector in the form of an intensive public-private dialogue and a meaningful engagement with industry stakeholders across different sectors. Today, the representatives of the state government will be here and available to listen, address, and take up any of your concerns in fostering a partnership with UP at the very highest level. We've also sharpened our focus on the industrial sector by launching a new infrastructure industrial investment policy in 2012, a civil aviation policy in 2014, very recently, and a huge range of new science and technology policy, biotechnology policy, big data policy, housing and urban planning policy, electronics policy, and many range of other policies are in the pipeline and will be soon presented to an audience gathering like this one. Several of our industries producing leather, plastics, electronics, food products, and many more are globally acknowledged players today. Our software and electronics hardware industry is thriving. UP's share, in fact, of the total electronic hardware exports is about 75% of North India's total hardware production. इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में मौजूदा निवेशक कंपनियों में रिलायंस जियो, सैमसंग आदि कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। Today, I can tell you, friends, Uttar Pradesh has provided us most friendly environment for implementing such a large-scale multi-location project. During the implementation of this project, not only we had to deal with officials, bureaucrats in Lucknow, but this project, which is being implemented at more than 100 cities in the state, we had to interact with hundreds of the state government bureaucrats. And I am happy to tell you, all of these bureaucrats provided us their full support in implementation. This is a unique story. I want you to understand that investing in UP, working in the state of UP has been a really good experience for us, and that has been possible with the guidance and the support which we got from Honorable Chief Minister and the rest of the bureaucracy in the state. I think the best state where you have the most accessible officers which I have seen in my life, whether it is IT or industry or telecom or maybe power, wherever you go, everybody is so quickly accessible in the state of UP. And of course, the Udyog Bandhu as a window for all projects, very supportive in all their initiatives, and not forgetting the chairman, Noida. I think Ramanamanji, already we heard a lot about you from Dr. Saab. I think he's a great gentleman, very supportive in all initiatives. Even if we have any issue, he's there to help us out any time of the day. So that's what we think. And law and order. People may say anything about state of UP, I don't know, but I myself live in Noida, in Sector 44, and I think we have a factory in Phase 2. We never faced any kind of such issue in the law and order.
And finally, I would like to thank our young and dynamic Chief Minister, Mr. Akhilesh Yadav ji, for really giving us the opportunity to be here and present ourselves as one of the leading investors in the state of UP, and we'll continue to do that in the coming time. Thank you so much, sir. नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की उपस्थिति में 54,606 करोड़ रुपए की धनराशि निवेश करने को लेकर निवेशकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें एसएल 20,000 करोड़ रुपए, रिलायंस जियो 5,000 करोड़, आईटीसी 2,100 करोड़, एमईटी 2,000 करोड़, मथुरा रिफाइनरी 8,000 करोड़, हिंदुस्तान पेपर मिल्स 4,000 करोड़, गेल 500 करोड़ और मॉडर्न ओवरसीज 150 करोड़ रुपए का प्रदेश में निवेश करेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रसन्नता जताई कि निवेशकों द्वारा उम्मीद से काफी ज्यादा धनराशि निवेश करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि निवेशकों का सकारात्मक रुख इस बात का प्रतीक है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं इस मौके पर यह भरोसा दिला सकता हूं कि जो काम शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं, और जितना भी मुझे समय देना पड़ेगा मैं समय देकर के एक एक लोगों से अगर मिलना भी पड़ेगा तो मैं मिल करके उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करूंगा। जहां तक पूंजी निवेश का सवाल है कि समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार आई है, समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़े। चाहे वो समय जब समाजवादी पार्टी की नेताजी की सरकार बनी थी और उस समय जो फैसले लिए गए थे, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था कि जहां पर उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट काउंसिल बना करके जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी राय और सुझाव क्या है, उनकी राय और सुझाव आने के बाद उसको पॉलिसी में लेकर के और सरकार के माध्यम से कैसे ज़मीन पर उतारें, वो एक काम शुरू किया था नेताजी ने पुरानी सरकार में। ये सही है कि हम डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं इन कॉन्क्लेव के माध्यम से मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे सीधा जुड़ूं और तमाम जो सुझाव और समस्याएं आपकी आती हैं उनका निराकरण करूं। आपने ठीक कहा कि एमआईटी आज यूनिवर्सिटी केवल उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी एमआईटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप चाहे उन बच्चों को जाने ना जाने जो आपके यहाँ से डिग्री पास कर करके जा रहे हैं, डिग्री हासिल करके जा रहे हैं और जीवन में जो आगे बढ़ करके पता नहीं कहाँ पहुँच रहे होंगे, आप उनको शायद नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ और कह सकता हूँ एक भी स्टूडेंट जो आपके यहाँ से पढ़ के गया होगा वो आपको पहचानता होगा, आपको जानता होगा। कहीं ना कहीं बहुत लोगों का आपने भविष्य बदलने का काम किया है, उनको भविष्य का रास्ता दिखाने का काम किया है। आज देश में इतने बड़े पैमाने पर जहाँ एक बार साउथ इंडिया को कहा जाता कि प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहीं मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में सबसे बड़ी जगह होगी जहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं और भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। इसी तरह शुगर इंडस्ट्री जो बदलाव लाने का काम किया था वो पुरानी सरकार में जब नेताजी मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में 26 चीनी मिलें कभी नहीं लगीं। जो उस कारोबार से जुड़े लोग होंगे या उसके बारे में जानते होंगे वो महसूस करते होंगे कि 26 चीनी मिलें कभी नहीं लगी। उस समय एक परिवर्तन लाने का काम किया और उसी के प्रयास से देश में सबसे ज़्यादा गन्ने की पैदावार अगर कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में, और चीनी का उत्पादन भी अगर कहीं हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में। और को जनरेशन में इतने बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रदेश नहीं बना रहा। को जनरेशन में अगर सबसे आगे कोई प्रदेश है तो वो है उत्तर प्रदेश। निवेशकों की जरूरतों को समझते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार अर्थव्यवस्था में परिवहन का महत्व अच्छी तरह जानती है, इसलिए प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए राज्य की राजधानी लखनऊ को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने के लिए 6 लेन का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश की परिवहन व्यवस्था तेज होगी तो अर्थव्यवस्था अपने आप तेजी पकड़ लेगी। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा, मान लीजिए सड़क बनाने का, हमारी प्रयास है कि नेशनल कैपिटल और स्टेट कैपिटल एक एक्सप्रेसवे से जुड़े और उसकी शुरुआत चाहे पुरानी सरकार में हुई हो
या पुरानी सरकार ने किया हो, उस काम को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। यमुना एक्सप्रेस अगर खोलने के साथ साथ उसकी तमाम समस्याओं का समाधान किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, क्योंकि हम जानते हैं कि सड़क बनने से उत्तर प्रदेश का विकास होगा, आगे बढ़ेगा। अब आगरा से लेकर के हम लोग लखनऊ तक लेकर के जा रहे हैं। मैं समझता हूँ देश का जो अपने बजट से ईपीसी मॉडल पर अगर कोई बना पा रहा होगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है, क्योंकि पुराने स्वीटनर का समय रहा नहीं, कितना स्वीटनर दें क्या करें, लेकिन उसका रास्ता नहीं। जब बजट हमारे पास है, हमें कहीं से भी इंतज़ाम करना पड़े, ये उत्तर प्रदेश तभी कोशिश कर सकता है क्योंकि बजट बहुत बड़ा है। और आगरा से लेकर के लखनऊ जो 6 लेन एक्सप्रेस वे है, एक्सपेंडेबल टू 8 लेन, एक्सिस कंट्रोल, मैं समझता हूँ बन करके जब तैयार होगा तो देश का ये पहला ऐसा एक्सप्रेस वे होगा जो सबसे बड़ा है और नेशनल कैपिटल से जोड़ने वाला ये हाईवे को। उसके किनारे जो डेवलपमेंट होगा वो आने वाले समय में दिखाई देगा। निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश में उपयुक्त माहौल और सुविधाओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है। गंगा, यमुना, चंबल, क्वारी, बेतवा और केन जैसी नदियां हैं। आलू और गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार राज्य में होती है। निवेशकों के लिए प्रदेश में अपार संभावनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेट्रो की शुरुआत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश हर क्षेत्र में विकास पथ की ओर अग्रसर है। मेट्रो की शुरुआत कर दी है। देश के जिनको कहा गया कि मेट्रो मैन हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ मेट्रो बनने जा रही है उसको राय देने के लिए, सुझाव देने के लिए श्रीधरन जी ने स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश के साथ वो काम कर रहे हैं। श्रीधरन जी उत्तर प्रदेश में उन्होंने टाइमलाइन तय की है कि लखनऊ में किस दिन शुरू हो जाएगी, काम होना कब से शुरू हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका साथ और सहयोग मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश तेज़ी से आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को जो रोज़गार चाहते हैं, जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, बिना आपके सपने पूरे नहीं होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले से कुछ लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में पहले से हैं, और आपके सहयोग से, आपके माध्यम से और लोग भी यहाँ आएंगे। जहाँ उत्तर प्रदेश जो कुछ क्षेत्रों में आगे है, मैं समझता हूँ आपके साथ मिलेगा तो बहुत सारे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश आगे दिखाई देगा। मैं अपनी सरकार की तरफ से ये भरोसा दिला सकता हूँ। जहाँ मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ, बहुत सारे लोग समय लेकर के भी मिलते हैं। अगर मुझे व्यक्तिगत अपनी तरफ से भी समय देना पड़ेगा, एक एक लोगों को उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए समय देना पड़ेगा, तो मैं सरकार की तरफ से आपके बीच में रहूँगा, जिससे कि आपकी तमाम समस्याओं का समाधान कर सकें। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद प्रदेश में निवेश करने वाले निवेशकों ने मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की और विभिन्न समस्याओं एवं भविष्य को लेकर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि वे प्रदेश में एक बेहतर माहौल में काम कर सकते हैं और प्रदेश सरकार निवेशकों की जरूरतों व हर छोटी बड़ी समस्या के निवारण के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गंभीर और ईमानदार प्रयासों के फलस्वरूप जहां उत्तर प्रदेश का नया चेहरा देश दुनिया के सामने आया है, वहीं यहां निवेश की बदौलत बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और प्रदेश खुशहाल होगा।